Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will start a new chapter, chapter 4, that is separation of substances. You see a lot of materials, a variety of materials around you, like soil, air, oil, milk, and so on. Most of these are mixture. Mixture means that they are made up of two or more substances. For example, air is a mixture of many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide. Similarly, milk is also a mixture and containing water and fat. So in this chapter we will study how to separate these substances. There are two types of substances, some that are pure and other are mixture. So to separate these substances we will use different type of methods. As you can see in this picture, there are sugar and soil. When we observe with the help of magnifying glass, then we can clearly see that sugar is a pure substance because in this sugar there are only sugar crystal present. Magnifying glass means by which we can see clear image of an object. And soil, as you can see in soil there are a lot of substances are present like pebbles, stone and grass. So this soil is not a pure substance. Soil contain impurities, or you can say soil is a mixture. Why soil is a mixture? Because it contains sand, small stones, grass, bits of paper, pebbles. But sugar is a pure substance because it is made up of only one type of substance. तो आपको प्योर और मिक्सचर में डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? प्योर सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, but mixture containing more than one type of substance. Listen again carefully. Look at this. Which are made up of only one type of substances are known as a pure substance. So definition of pure substance is clear to you. Pure means that are made up of only one type of substances, and mixture means mixtures that contains more than one type of substance. जिसमें एक से ज़्यादा substance present होंगे, that is known as a mixture. So sugar is a pure substance but soil is a mixture. So it is clear to you. Next is air is also mixture because air contains a lot of gases. Now see the pictures given below and categorize them as pure substances or mixture. You have to do this activity in your book beta. Pure substances: salt, sugar, butter, jute rope. Some pictures are given to you. So pure substances are salt, sugar, butter and jute rope because these are made up of only one kind of substances. But vegetable curry, as you can see this in this picture beta, in vegetable curry a lot of materials are present, so this is a mixture. Like this, water from a pond, as you can see there are patches, green patches in water, flour and mud, so pond water is a mixture. Chocolate milk, in chocolate milk there are two substances like milk and chocolate, so it is not a pure substance, it is a mixture. Milk is also a mixture because milk contains water and fat substances, so milk is also a mixture. So I hope you all understand about pure substances and mixture. What is difference between pure substances and mixture? Now mixture is, it is formed when two or more substances are mixed together in any proportions. The component of mixtures are not combined chemically. Air, soft drinks, lemonade. What is the meaning of lemonade? Nimbu pani. And sea water. These are example of a mixture. Why air is a mixture?
Some example of mixtures are given to you, like as you can see here, air, soft drinks, lemonade and sea water. These are example of mixtures. Why air is a mixture? Because in air gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide are present. Sea water is also mixture because it contains salt, water and sand particles. Aerated drink means like soft drinks or soda drinks. These are also a mixture because soft drink contains water, sugar and carbon dioxide. Lemonade means nimbu pani. In nimbu pani, lemon juice, sugar and water is present, so it is a mixture. Crude oil means petrol, kerosene oil, diesel. These are crude oil. And crude oil is also a mixture because in crude oil all these components are present like petrol, kerosene and diesel. Now, a mixture can be in a solid, liquid or gaseous form. There are the three form of a mixture. मिक्सचर को आपने कैटेगराइज किया 3 कैटेगरी में. फर्स्ट इज सॉलिड, liquid and gases. Solid example of solid are soil, alloys like brass, bronze, fused wires, and example of liquid are salt solution, aerated drinks, sea water, and gaseous mixtures are air, CNG, PNG and LPG. So one question can come from this: what is CNG, PNG and LPG? Full form of CNG is compressed natural gas. Next is PNG, pipeline natural gas, and LPG means liquefied petroleum gas. So these are the full form of CNG, PNG and LPG. Yes, alloys are mixture of metal or metal with non-metal. When one metal react with metal or non-metal, then it form alloys. alloys क्या होता है बेटा? दो मेटल्स आपस में मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन. ठीक है. ऐसे ही ब्रोंज में भी 2 मेटल्स का यूज किया जाता है, कॉपर एंड जिंक. सो दीज आर alloys. alloys मीन्स दो मेटल्स का कंबाइन करना, मेटल का मेटल के साथ में या फिर मेटल का नॉन मेटल के साथ में. फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो सॉलिड क्लियर हुआ बेटा आपको? सॉलिड मीन्स सॉलिड मिक्सचर जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे. लिक्विड मिक्सचर मीन्स विच कंटेन्स लिक्विड सब्सटेंसेस. एंड गैसेस मीन्स गैसेस आर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल इन एयर, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, a lot of gases are present. So these are example of solid, liquid and gaseous mixture. You have to learn this table. These example are very important. Next is type of mixture. First is homogeneous mixture and second is a heterogeneous mixture. Definition of homogeneous and heterogeneous mixture is also very important. What is the meaning of homogeneous? Homogeneous, which has the same composition throughout, that is its components are uniformly distributed. For example, when we add salt in water, then this is a homogeneous mixture. Homogeneous means आपको components mix होने के बाद में आप उनको separate नहीं कर पाते. जैसे वाटर में जब हमने सोल्ट या शुगर को ऐड किया तो आप मतलब देख के हम पता नहीं लगा सकते कि इसमें सोल्ट या शुगर ऐड है. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. बट इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच डजेंट हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, दैट इज इट्स कंपोनेंट आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, व्हेन वी ऐड सैंड इन वाटर देन दिस सैंड सेटल डाउन. मतलब सैंड जो है वो वाटर के साथ में
मिक्स नहीं हो रही है, आपको सैंड पार्टिकल्स अलग से दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ. होमोजीनियस में क्या बोलते हैं हम, पार्टिकल्स पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं. बट हेट्रोजीनियस के अंदर पार्टिकल्स मिक्स नहीं होते, वो आपको सेपरेट दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल आपने वाटर में आयरन नेल्स को डाला, पेबल्स को डाला, राइस, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो दिस विल बी एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. और होमोजीनियस में क्या बता रहे हैं, जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर में सॉल्ट, शुगर, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है. इसी तरह से अलॉयज़ जो आपको मैंने बताया, ब्रास, ब्रोंज, मतलब ब्रास को जब हम देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता देख के कि इसमें हमने 2 मेटल्स को ऐड किया हुआ है. सो दिस इज टाइप ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. Do you know some dishonest person mix harmful and cheap components with the pure substances to earn money? For example, they mix white stones in rice or dried papaya seeds in black pepper. कई बार शॉपकीपर्स क्या करते हैं बेटा, राइस के अंदर वाइट स्टोन्स डाल देते हैं उसका वेट बढ़ाने के लिए, और ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स जो है वो हमें देखने में ब्लैक पेपर की तरह दिखाई देते हैं ना, तो क्या करते हैं शॉपकीपर्स, ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स को ऐड कर देते हैं. सो दिस इज़ नोन एज अडल्ट्रेशन. इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, दिस अडल्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अडल्ट्रेशन? अडल्ट्रेशन मीन्स मिक्स प्योर सब्सटेंस के अंदर इम्प्योरिटीज़ को मिक्स करना, टू ऐड इम्प्योरिटीज़ इन प्योर सब्सटेंस, लाइक स्टोन इन राइस में स्टोन को ऐड कर देते हैं, ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स को. दिस इज़ नोन एज अडल्ट्रेशन. शॉपकीपर क्यों करते हैं ऐसा? ज़्यादा मनी अर्न करने के लिए. एंड सो वी शुड ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय गुड क्वालिटी फूड स्टफ फ्रॉम अ रिलायबल शॉप. मतलब जिस शॉप पे आप यकीन कर सकते हो, आपको लगता है कि ये शॉपकीपर अच्छा है, मतलब ये मिक्सिंग नहीं करता शॉपकीपर, तो उसी शॉप से आपको फूड आइटम परचेज़ करने चाहिए जिसमें इम्प्योरिटीज़ ना हो. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स. हमने बताया कि मिक्सचर मीन्स जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐड होंगे, तो बहुत सारे मेथड हैं, हम उन मेथड्स का यूज़ करेंगे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए. फर्स्ट इज़ मिक्सचर ऑफ सॉलिड विद सॉलिड, मतलब सॉलिड का सॉलिड के साथ मिक्स होना, सॉलिड का लिक्विड के साथ मिक्स होना. एंड लास्ट इज़ मिक्सचर ऑफ लिक्विड विद लिक्विड, लिक्विड का लिक्विड के साथ में मिक्स होना. तो ये आपको 3 डिफरेंट तरह की कैटेगरीज गिवन है. एंड इन कैटेगरीज को सेपरेट करने के लिए, मतलब सॉलिड के अंदर सॉलिड कुछ अगर मटेरियल मिक्स हो जाता है तो उसको सेपरेट करने के लिए आप अलग मेथड यूज़ करोगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिया व्हीट फ्लोर और उसके अंदर राइस मिक्स हो गए. एज यू नो दैट व्हीट फ्लोर इज़ इन सॉलिड फॉर्म, राइस इज़ ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म. तो आप उसको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करोगे? सीव का. सीव से क्या होगा, जो व्हीट फ्लोर है वो नीचे चला जाएगा और सीव के अंदर क्या रह जाएंगे बेटा? राइस. तो ये डिफरेंट आपको मेथड्स हैं गिवन होंगे जो हम यूज़ स्टडी करेंगे आगे. अब फर्स्ट आपको गिवन है बेटा, फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग. एज यू कैन सी देर इज़ पल्सेस, मतलब अगर आपकी मदर, आपने देखा हो कभी जब आपकी मदर पल्सेस को साफ़ करते हैं, दाल को साफ़ करने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं? हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ करते हैं. हैंड पिकिंग मीन्स जो दालों के अंदर छोटे छोटे पेबल्स होते हैं या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं तो उसको हाथ से वो सेपरेट करती हैं. दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप और साइज and the quality of mixture is small. Example, separating of component of mixture by hand picking are separating pebbles from rice or dal or separating grass from mint leaves. जब आपकी मदर धनिया चुनते हैं तो क्या करते हैं? उसमें से ग्रास को सेपरेट करते हैं. राइस या फिर दाल को जब साफ़ करने लगते हैं तो उसमें पेबल्स होते हैं, तो हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से वो उन पेबल्स को सेपरेट कर देते हैं. सो दिस मेथड इज़ क्लियर टू यू. You observe your mother to separate pebbles from rice or dal. This method is known as a hand picking method.
एंड इन दिस हैंड पिकिंग मेथड वी आर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड. सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट कर रहे हैं क्योंकि पेबल्स भी सॉलिड फॉर्म में होते हैं और जो राइस और पल्सेस हैं वो भी सॉलिड फॉर्म में हैं. नेक्स्ट मेथड इज थ्रेशिंग. दिस मेथड इज डन बाय यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द हस्क पार्टिकल्स आफ्टर हार्वेस्टिंग. आपने देखा होगा फार्मर क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग मीन्स जब वीट की कटाई कर लेते हैं, खेत से कट कर लेते हैं वीट को, तो उसके बाद उसमें कुछ हल्के से पार्टिकल्स रह जाते हैं, है ना. उन पार्टिकल्स को रिमूव करना, दिस इज़ नोन एज थ्रेशिंग. ग्रेन्स को सेपरेट करना. थ्रेशिंग इज़ डन बाय यूजिंग मशीन कॉल्ड थ्रेशर. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, थ्रेशर इज़ यूज्ड. थ्रेशर से क्या हो रहा है, जो वीट पार्टिकल्स हैं, ये देखो, ये क्या कर रहा है, वीट पार्टिकल्स जो है वो नीचे इकट्ठे हो रहे हैं और जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो यहाँ, मतलब वो लाइटर होते हैं, वो दूर चले जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे वो. तो दिस मेथड इज़ नोन एज थ्रेशिंग. सो थ्रेशिंग इज़ क्लियर टू यू. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रेशिंग? तो थ्रेशिंग मेथड कब यूज़ करते हैं बेटा, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए. डू यू नो द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द राइपन क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग. क्रॉप्स जब राइप हो जाती हैं, जब पक जाती हैं, तो क्रॉप्स की कटिंग करते हैं, हम उसको एक जगह कलेक्ट करते हैं, एंड दिस इज़ नोन एज हार्वेस्टिंग. अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन इज़ यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. मशीन होती है बेटा एक, जिसको कंबाइन बोलते हैं, उस मशीन का यूज़ किया जाता है हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए. नेक्स्ट मेथड इज़ विनोइंग मेथड. दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स लाइक व्हीट बाय विंड ब्लो मेथड. एज यू कैन सी दिस लेडी स्टैंडिंग ऑन अ हाइट. ये लेडी हाइट पे खड़ी है ना, ये देखो हाइट पे खड़ी होकर क्या कर रही है, ये व्हीट फ्लोर को, मतलब अपने सामने फ़ैन लगाया हुआ है इसने. फ़ैन से क्या होगा, जो ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स पार्टिकल्स हैवी हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं वो ना, और जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो लाइटर है, लाइटर होने, हल्के होने की वजह से वो दूर जा रहे हैं, देखो यहाँ स्प्रेड हो रहे हैं ये. तो क्लियर हुआ. दिस मेथड इज़ नोन एज विनोइंग. और विनोइंग मेथड का यूज़ कहाँ करते हैं, ग्रेन्स को हस्क पार्टिकल से सेपरेट करने के लिए. सो इट इज़ क्लियर टू यू बेटा. और विनोइंग मेथड भी किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए. तो आज हमने बेटा 3 मेथड्स करे सॉलिड को सॉलिड से सेपरेट करने के लिए. फर्स्ट मेथड इज़ हैंड पिकिंग, सेकेंड इज़ थ्रेशिंग एंड थर्ड इज़ विनोइंग. सो टुडे यू हैव टू रीड पेज नंबर 49 to 53 and learn extra question also. If you have any doubt, then you can ask me.